हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. आई एम लोहित जिंदल, founder and director at Cortex Classes. So guys, I am back with the next video of PRMO 2019. So today we are going to solve the 10th question of PRMO 2019, right? So it is based on geometry. So before starting, I just want to remind you and request you guys कि please guys साथ साथ में question को solve करो so that you can get the maximum benefit out of it. Okay, better समझ में आए जिससे कि आपको. Okay, so nothing much. So let's begin without wasting any time. Okay, so guys, let me get to the corresponding slide. Okay, so here it is. Okay, so guys, what does it say? डायग्राम साथ साथ में ड्रॉ कर लेंगे. लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल एंड ओमेगा बी इट्स सर्कम सर्कल. ओके, एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाना है. The internal bisectors of angle A, B and C intersect omega at A1, B1, C1 respectively. Okay. So guys, let's draw. एक काम करते हैं, सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं. Okay, here it is. So and let's draw a triangle. Okay, I'm not able to draw properly. Okay. So guys, this is triangle. Just a second. I don't know why it's not making it easily. Okay. Okay, so guys, this is the triangle ABC. Okay, so let me drag it down a bit. थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि नाम लिख सकें. ऑल राइट. So guys, so this is A, B, C. Okay. ओके, एक काम करते हैं guys, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया. ओके. ओके, लेट मी मेक इट अगेन गाइस. थोड़ा इशू कर रहा है ये. Okay, so guys, this is triangle A, B, C, and we have drawn their angle bisectors. Okay, I'm sorry about the time delay. So let's say guys, this is a first angle bisector. B का angle bisector ड्रॉ कर देते हैं. And then there is C का angle bisector. First of all guys, they will be concurrent, right? Passing through the incenter, of course. Okay, तो मैंने ड्रॉ कर दिए guys. Let me name them. Let's say the triangle is A1, B1 and C1, right? So this is what is formed. And उनको points को triangle को join कर देते हैं guys. Okay, let us join the angles of like the sides of triangle A1, B1, C1. Okay, so now we have drawn the diagram guys. I'm sorry about the time delay. Okay, इसमें थोड़ा time लग गया. Okay, so the internal angle bisectors of ABC intersect omega at, ये जो circle है guys, that is omega basically. That is this. Okay, and this is point A. So now guys, angle bisector draw किया था, right? A1, B1, C1 पे. उसने ऑल्दो आगे फिर से यही प्रोसेस दोबारा करने के लिए बोला है A1, B1, C1 के लिए. ओके, विल नॉट स्टार्टेड एज ऑफ नाउ बिकॉज इट विल डायग्राम मेसी सा हो जाएगा. पहले हम इसके कारण ही जो होता है उसका का रिलेशन ढूंढ लेते हैं. बिकॉज द सेम थिंग, अगर आप यही प्रोसेस A1, B1, C1 के लिए करोगे, द सेम रिलेशन विल बी फॉर्म ना फॉर द फर्दर पार्ट. ओके, तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इज 40, we are being asked about what is the magnitude of the smallest angle of triangle A2, B2, C2 in degrees. Okay, कि कितना होगा. Let us see guys. So start करते हैं guys. जो A1, B1, C1 का एंगल है, देखो A के ऑपोजिट एंगल कितना आएगा. Okay, so guys, if I say कि this angle is theta, okay, let me name this. Let's say this angle is theta, that is angle ABB1. So can I say guys that angle ABB1 which is theta, let's say नाम दिया है,
isn't it equal to, देखो, this is subtended by the arc AB1. Isn't AB1 also subtending at A1? So that should be equal to angle AA1 B1. Can we say this? So guys देखो, ABB1 is subtended by arc AB1. वही एंगल आर्क AB1 कहां सबटेंड कर रहा है? यहां पे. This should also be theta, right? This angle should also be theta. Fine. तो AB arc जो है एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क और या सेम कॉर्ड आप कह सकते हो इन द सर्कल, राइट? इन द सेम सेगमेंट बल्कि. तो AB1 is subtending theta at point B and same angle theta at point A1, right? So guys, one more thing. Since ABB1 is angle theta and we know BB1 was the angle bisector, वो angle bisector है. So angle B1BC, this is also theta, isn't it? This angle is also theta. B1BC, right? That angle is also theta. ये लिख देते हैं इसको, that is angle B1, sorry, B1BC. That is B1 B पे जो एंगल बन रहा है C, right? I hope this much is clear. Now similarly guys, अगर हम ये बोलें कि जो ये वाला एंगल है, similarly ACC1, let's say I say this angle is alpha. Angle ACC1, let us name it as alpha. Okay, ये जो अल्फा एंगल है गाइस, isn't it same as this is subtended by the arc AC1, है ना? वो A1 पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? एंगल A1 C1. See this angle A1 C1, this angle should also be alpha, right? Because both the angles are subtended by the arc AC1. AC1 is subtending at C point. C point पे भी अल्फा सबटेंड हो रहा है, तो A1 पे भी अल्फा सबटेंड होगा, right? And furthermore guys, अगर ACC1 जो है, since CC1 is angle bisector, isn't this angle also alpha? This angle is also alpha, which is C1CB, which is equal to angle C1CB, because angle bisector है, right? I hope यहाँ तक clear है guys. So guys, I am assuming that angle A was the smallest angle. I am assuming here that angle A was the smallest. ये वाला पूरा angle guys, ये smallest था. तो उसके corresponding what is alpha plus theta? आपको angle A1 ढूंढना है, right? Let us see what is angle A1, meaning angle B1 A1 C1. I'm talking about this angle, which is theta plus alpha. कितना होगा, है ना? उसके बारे में रिलेशन ढूंढते हैं. So guys, see, in this triangle ABC, by angle sum property, can I say that angle A plus 2 theta plus 2 alpha, okay, plus 2 alpha is equal to 180, right? Angle sum property लगा सकते हैं triangle का. Now from this thing, what is alpha plus theta guys? देखो, 2 times theta plus alpha is 180 degree minus angle A. So taking half on, like you can divide by 2. So guys, theta plus alpha कितना आ रहा है? So theta plus alpha is 90 minus angle A by 2. तो गाइज 90 में से हाफ हो गया. आई एम नॉट सेइंग कि अगर A स्मॉलेस्ट है तो ये वाला एंगल स्मॉलेस्ट होगा. आई एम नॉट गोइंग अबाउट इट राइट नाउ. वो नहीं जरूरी है, राइट? ऑब्वियसली 90 माइनस एंगल A by 2 है, सो इट नॉट नीड नॉट बी द स्मॉलेस्ट ऑफ दैट ट्राइंगल. अभी तो हमने उसकी बात ही नहीं करी, लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट किस ट्राइंगल का पूछा जा रहा है? A2 B2 C2, नॉट येट A1 B1 C1 का नहीं पूछा है. वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट A2 B2 C2, राइट? सो गाइज हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि अगर आपका ट्राइंगल ABC है, उसका एक एंगल A, तो उसके थ्रू जो एंगल बाइसेक्टर बनता है, वो जो नया वर्टेक्स बनता है A1, तो वो एंगल कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल A. सो बेसिकली वी फाउंड अ रिलेशन कि अगर एंगल A पता है, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल A1 की वैल्यू क्या आएगी, राइट? वो हमने ढूंढ लिया. नाउ इफ यू डू दिस प्रोसेस अगेन, लाइक A1 B1 C1 के लिए फर्दर A2 B2 C2 में अगर आप एंगल A2 निकालना चाहोगे, ओके, so if I'm finding angle A2, you can also name theta plus alpha as angle A1, right? नाम ऐसे दे देते हैं, that is angle A1. So if I have to do the same thing, right? A1 का रिलेशन क्या है पिछले एंगल के साथ? 90 माइनस एंगल, 90 माइनस ऑपोजिट एंगल का हाफ, राइट? या फिर जिसका एंगल बाइसेक्टर पे से वो मिला है वो पॉइंट, उसका एंगल का हाफ लेना है, 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो A2 क्या होना चाहिए? इट शुड यूज द सेम रिलेशन, राइट? नथिंग डिफरेंट, सेम रिलेशन होना चाहिए. So 90 degree minus angle A1 by 2. So let us substitute angle A1 by 2 ना.
So it is 90 minus, this is 90 minus angle A by 2, उसका फिर से half हो गया. So guys, what this will it be? 90 minus 90 by 2 is 45 plus angle A by 4. So that is 45 plus angle A by 4. Now what interestingly happened is, guys, देखो directly proportional आ गया. It is like A2, angle A2 is directly proportional to angle A1. या फिर sorry, angle A. And it is plus sign, with the plus sign, right? 45 degree plus 40 plus angle A by 4 आया है. मतलब अगर देखो ऐसे ही एंगल B2 क्या आ जाएगा? It will be 45 plus angle B by 4. ऐसे ही एंगल C आएगा 45 plus angle C by 4, right? नो इश्यूज देयर. बट तो इससे हमें पता क्या लगा गाइस कि अगर ए बी सी का कोई जो भी ऑर्डर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है, कोई बड़े एंगल है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो A2 B2 C2 आएंगे वो भी उन्हीं ऑर्डर में होंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट. 45 डिग्री तो कांस्टेंट है, सब में ही ऐड हो रहा है, बट इट्स मीनिंग angle A2 is dependent on angle A, angle B2 will be dependent on angle B, and angle C2 will be is dependent on angle C. तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट बोला गया है एंगल एबीसी का 40 डिग्री है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल A2 B2 C2 ट्रायंगल में मिलेगा आपको, वो भी स्मॉलेस्ट होगा उस ट्रायंगल का, राइट. सो इफ आई अज्यूम दैट एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट, नाम ही तो देना है, उसमें क्या एंगल ए को मान लेते हैं. सो इफ एंगल ए इज 45, so if we say that let's say angle A is 45 degree, so उसके corresponding guys angle E2 क्या आ जाएगा देखते हैं. 45 plus, sorry, angle A is 40, I'm sorry, 40 degree दिया होगा ना, so that is 45 degree plus 40 by 4, right. So that's giving us how much? 55 degrees, right. So आप देख सकते हो गाइज इस तरह से 55 डिग्रीज आपके पास आ रहा है एंगल A2 का वैल्यू, राइट. सो दैट शुड बी अवर फाइनल आंसर गाइज. तो जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए जो आप मार्क करेंगे, दैट शुड बी 55 डिग्रीज, राइट. सो नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको जस्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है. सो गाइज आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने काफी चीजें लिखी हैं, बट एक्चुअली अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखते हो आपको एंगल समझ में आ जाएंगे बहुत इजीली, है ना. इट्स जस्ट अबाउट एंगल चेजिंग, नॉट कोई मुश्किल सी थ्योरम नहीं यूज हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है. यू कैन सी देयर आर प्रीटी मच सिंपल इनफ कॉमन थ्योरम्स दैट यू आर यूजिंग. क्या क्या यूज किया हमने अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, वो कॉन्सेप्ट यूज किया. एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी तो क्या एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यूज करी है, राइट. एंड देन एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट्स इट. एंड देन द लॉजिक की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने आगे के आगे फाइंड करते रहे, राइट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. सो दैट्स द फाइनल आंसर, दैट इज 55 डिग्रीज, राइट. सो गाइज आई होप सबको आपको समझ में आया ये क्वेश्चन एंड यू गाइज लाइक्ड इट, ओके. एंड एटलीस्ट कम से कम समझ में आया, ओके. एंड आई होप आप सब लोगों ने सब साथ साथ में सॉल्व किया होगा, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज टुडे, राइट. 10th क्वेश्चन हमारा हो गया. बेसिकली वी आर 1/3 पेपर थ्रू ऑफ 2019, 1/3 हो गया हमारा, ओके. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर.